ایک انسان کو قتل کرنا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ایک کو نہیں، آپ بتا رہے وہاں 24-26 کو مارے، اسلام کہتا ہے وہ 26 کو مارنا نہیں، پوری انسانیت کو مار دیے وہ لوگ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ توبہ میں، اور وہ آیت ہے 5ویں آیت، جس کا اس طرح مفہوم ہے کہ جہاں بھی کافروں کو دیکھو ان کا قتل کرو۔ ہندوستان میں مسلمان 20 کروڑ سے زائد ہیں، آپ ان کے اندر نفرت پیدا کر کے ہندوستان کو ترقی نہیں دے سکتے۔ ہندوستان کی ترقی ہندوستان کے مسلمانوں سے اعتماد کی بحالی۔ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اس کا اسلام سے یا پھر انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں تیمم کی آیت موجود ہے، جتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو مٹی سے تیمم کر کر مٹی پہ ہاتھ مار کر وضو کر لیتے ہیں۔ اسلام مکمل زندگی سکھاتا ہے، تو کبھی کسی کو یہ حالات سے دو چار ہو جائے، جنگی حالات، وہ آیتیں نکال کر آپ امن کے حالات پر منطبق نہیں کر سکتے۔ آداب، آج اس وقت میرے ساتھ شاہی مسجد حیدرآباد کے امام و خطیب مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی موجود ہے۔ پہلگام میں جو آتنکواد جو حملہ ہوا تھا، جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بات بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ جن دہشت گردوں نے وہاں کے سیاحوں کا جو قتل کیا، بالکل نام لے کے قتل کیا، اور اس کے بعد سے پورے میڈیا میں یہ بات چھائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا کلمہ پڑھا کر کے ان کو قتل کیا گیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا قتل کیا گیا۔ تو ہم آپ سے مولانا سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں آخر اس طرح کا تشدد، اور اسلام کے ماننے والے اس طرح کا تشدد کیوں اختیار کر رہے ہیں دوسرے نان مسلموں کے ساتھ؟ اچھا، اس سلسلے میں ایک آیت بھی پیش کی جا رہی ہے قتل اور دہشت گردی کے فروغ دینے کے سلسلے میں۔ خود قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ توبہ میں، اور وہ آیت ہے 5ویں آیت، جس کا اس طرح مفہوم ہے کہ جہاں بھی کافروں کو دیکھو ان کا قتل کرو۔ تو اس پہ ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محترم رحمان پاشا صاحب ہیں، جو حیدرآباد دکن کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان صحافی ہیں۔ مختلف ایسے ایشوز پر وہ بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور ماہرین کے پاس جا کر اس کی یعنی متعلق دریافت کرتے ہیں۔ حالیہ واقعہ جو کشمیر کا ہوا ہے دہشت گردانہ حملہ، یہ بات سب پر واضح ہے کہ اور تمام امت مسلمہ، پوری ہندوستان بھر کے تقریباً 20 کروڑ مسلمان، جس میں ہر مکتب فکر کا انسان موجود ہے، اور اس کی پرزور مذمت مدارس والے، خانقاہ والے، درگاہوں والے، عام آدمی سے لے کر کے سیاسی قائدین تک، سب ایک پلیٹ فارم پر آ کر کہتے ہیں کہ اس حملے کے پس پردہ چاہے کوئی ہو، اسے کیفر کردار تک پہنچانی چاہیے، اور اس کے لیے امت مسلمہ ہندوستان کی متحد ہے، اور جو خدمات ہماری طرف سے ہو سکتے ہوئے ہم اسے پیش کر اگر ہمارے ذمے کیا جاتا ہے تو ہم بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کے پیچھے پڑوسی ملک پاکستان ہے تو پھر ہندوستان کو سفارتی طور پر اور پھر وزارتی طور پر کڑے قدم اٹھانی چاہیے۔ وہ بہتر جانتے ہیں، اور پوری مسلم امہ اس وقت ہندوستان کی، ہماری ہندوستانی حکومت کے ساتھ ہیں۔ ضروری بات سماعت فرما لیں، اسلام کا پیغام بہت واضح ہے، قرآن سب کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات میں اتنا واضح بیان کسی کا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے اندر آسمانی مذاہب میں یہ واحد مذہب ہے جس کے پاس اپنے پروردگار عالم کا مکمل محفوظ کلام اللہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ضرور کتاب ہے، لیکن کتاب اللہ سے پہلے اس کو پڑھنے کے طریقوں کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوز الکبیر۔ اگر کوئی قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو الفوز الکبیر پہلے پڑھے۔ ایسے ہی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو قرآن پڑھنے سے پہلے علماء کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ توبہ کی آیت جو بتائی گئی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ حَيْثُ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ قرآن مجید کی ضرور آیت ہے، واضح آیت ہے، پیغام واضح ہے، کلیئر ہے۔ سمجھا کیسا جائے؟ قرآن مجید
पूरा एक वक्त में नाजिल नहीं हुआ। कुरान मजीद 23 साल के अंदर नाजिल हुआ। उसके लिए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-2 आयतें 4-4 आयतें वक्तन फवक्तन लेकर के आसमान से नाजिल हुए। बात यह है कि कुरान के बाज़ आयतें वो हैं जो मक्के में नाजिल हुई, बाज़ आयतें जो है मदीने में नाजिल हुई, बाज़ आयतें जो है दौरान सफ़र नाजिल हुई, बाज़ आयतें जो है वो इक़ामत के वक्त में यानी जहाँ पर मदीने में क़ियाम के वक्त नाजिल हुई, बाज़ आयतें अमन की हालत में नाजिल हुई, बाज़ आयतें जंग की हालत में नाजिल हुई। यानी मुसलमान पे लाजिम है कि चाहे वो अमन की हालत में हो या जंग की हालत में हो, अल्लाह के पैगाम को फॉलो करें। मैदान जंग में है, सामने दुश्मन ठहरा हुआ है, इधर मुसलमान ठहरे हुए हैं, इंतजार करते हैं कि अल्लाह का पैगाम क्या आए। तो ये जो आयत है ये उस वक्त की आयतें हैं जब कुफ्फार मुशरिकीन सब नहीं, जो जंग लड़ने के लिए तलवारें सोंध कर, तलवारें नियाम से बाहर निकाल कर जान से मारने के लिए आकर के ठहरे हुए हैं, मुसलसिल जंगी माहौल बना हुआ है, जंगी हालात बने हुए हैं। अरब कबाइल में जब जंगें शुरू होती तो साल हा साल चलती, महीना दर महीना चलती, और उनको मालूम है कि जब ये महीना दर महीना चलने वाले जब ये मामलात है तो इस वक्त में जो 4 महीने आते हैं उसे अशहुर हरुम कहते हैं। तो तुम्हारी जंगें इन अशहुर हरुम में रोक दो, जंग चाहे कोई हो अशहुर हरुम में रोक दो, मत लड़ो। ये कानून इस्लाम से पहले से वहां पर था कि जो भी कबाइली जंग होती है ये हुर्मत वाले महीने हैं, इसमें कोई भी बड़ी से बड़ी जंग हो एहतरामन रुक जाते, और जब ये हुर्मत वाले महीने खत्म हो जाते हैं तो तुम अपनी जंगों को जारी करो। तो ये जो आयत है जिसको पेश किया जा रहा है, पेश कर कर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान का मकसद ही ये है कि जहां कहीं गैर मुस्लिम मिले अगर कत्ल कर दे। तो मैं इसको आपको बता रहा हूं कि ये कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन है, कुरान मजीद की गलत तर्जुमानी है। आपकी गलत तर्जुमानी से कुरान का असर नहीं, कुरान पे कोई इफेक्ट नहीं। आपका कहने का एक मतलब ये भी है कि जो आयत जो नाज़िल हुई थी उसका अपना एक पस मंज़र था, लेकिन आम इंसान का एक डाउट ये भी है क्योंकि अब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है और वो आयत कुरान का हिस्सा है, तो आज के तनाजुर में वो आयत को किस अंदाज में लिया जाए, उस आयत का आज के हालात में जिस एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हम जो रह रहे हैं उसका आज के हालत में क्या मफहूम लिया जाए। देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूं, कुरान मजीद ने 5वें और 6ठे पारे में तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे को जब वजू टूट जाए, गुस्ल टूट जाए तो तुम तयम्मुम करो। मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप असर की नमाज पढ़ कर आए, मैं असर की, क्या मेरे लिए तयम्मुम जायज़ है? मेरे लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है। तयम्मुम सब लोगों के लिए जायज़ है, तयम्मुम सब लोगों के लिए जायज़, जबकि इस वक्त के लिए जब तुम ऐसी जंगल में पहुंच जाओ, ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाओ जहां तुम्हें पीने के लिए पानी ना हो, इस्तेमाल के लिए बरतने के लिए पानी ना हो, और वहां तुम्हारी ज़रूरत पेश आ जाए, तुम्हें पाकी हासिल करना है, तब तुम क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। आयत तो कुरान में मौजूद है, अमल करने का एक ख़ास वक्त होता है। ये आयत भी कुरान में मौजूद है, इस पे भी अमल करने का खास वक्त कैसे होगा? इस वक्त तो दुनिया एक पूरी तौर पर एक मुआहदे की तहत चल रही है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये उस वक्त की ये मुआहदा कब से हुआ? हाल से हुआ। गुज़िश्ता सदियों के अंदर अगर एक कौम दूसरे कौम के मुकाबले में ठहर जाती है, जब मुसलमान कौम एक मुस्लिम मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है, इस तौर पे जो उस जमाने के लिए है, और उस वक्त जब कोई आपके सामने लड़ने, जंगी हालात है, जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है, अगर ये मुआहदा टूट जाए, एक फौज दूसरे फौज के सामने है, सबको मालूम है कि जंगी बॉर्डर के रूल्स और रेगुलेशंस अलग होते हैं और आम जिंदगी में अंदर के रूल्स अलग होते हैं। फौज जो होती है, जो बॉर्डर पर ठहरी हुई है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अलग है, आम सिविलियंस के लिए रूल्स अलग हैं। ऐसे ही बिल्कुल ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो जंग के अंदर, जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, जो मुस्तल्लाह है और मैदान जंग में ठहरे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए। ये एक नहीं, ऐसे और भी आयतें हैं, सूरत तौबा के अंदर है, सूरत अनफाल के अंदर है, और दीगर जगहों पर ऐसी आयतें मिलती हैं। और ये एक आयत नहीं है, इसके अंदर पूरा तरीका बतलाया गया कि जंग हो तो कैसे हो, किसको मारा जाए, किसको नहीं मारा जाए, उसके बाद आने वाले माल को क्या किया जाए, ये पूरा हालत। अब रही ये बात
अमन के हालात के ऊपर हदीसें मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। मैं मेरा सवाल वही था हतमी तौर पर, यानी बिल्कुल मुख्तसरन, कुरान में जहाँ ये आयत है और इस तरह की ये भी आयत है कि अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। इस तनाजुर में आप बताएं कि बाहमी इत्तेहाद, रवादारी, इसका इस्लाम क्या दावत देता है, क्या अपील करता है? जी जी, अब आप देखिए कि वो आयत तो आपको नजर आएगी, ये आयत भी कुरान दुनिया का सबसे पहला मजहब है जो कत्ल को, नाहक खून बहाने को इतने बड़े अंदाज में पेश करता है। दुनिया का पहला मजहब है जो पेश किया। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? पूरी इंसानियत को इस्लाम इतना स्ट्रांग कहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रांग मैसेज और स्ट्रांग इस्लाम की तरफ से एक फैसला होता है कि तुम उसके साथ वैसा मामला मत करो कि उन्हें 26 को मारा है, उसके साथ वो मामला करो कि उन्हें पूरी इंसानियत को तहस नहस कर दिया है। समझे? तो इस्लाम ये कहता है कि किसी को हक ही नहीं है कि नाहक, मासूम, कमजोर या फिर बिल्कुल जो तैयार नहीं है उनको आके आप मार रहे हैं। हाँ, आपके अंदर अगर लड़ने का दम है तो फौज हमारी जो बॉर्डर पे ठहरी हुई है वो फौज से लड़के बताएं, वो मुसल्लह है, लड़ने तैयार है। तुम्हारे हाथ में गन तो उनके हाथ में भी गन है। ये लोग बिल्कुल मासूम हैं। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना देता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सुनिए क्या फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल उस्फूरन, कोई अगर सिर्फ एक चिड़िया को ही मार लेता है, आजकल शिकार के तौर पे मारते हैं, हुजूर फरमाए चिड़िया को भी अगर कोई मार देता है और चिड़िया से छोटी चीज को भी अगर कोई मार देता है और बगैर कोई हक के, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के रोज उसके कत्ल के मुताल्लिक भी तुमसे सवाल करेगा। इस्लाम तो चिड़िया को ही मारने का हुक्म नहीं देता। यहाँ तो इंसान तो छोड़िए, एनिमल राइट्स की भी बात की गई है। दूसरी, अब जहां पर ये लोग बोल रहे हैं गैर मुस्लिमों को, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? बड़ी अहम हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और ये बिल्कुल सही हदीस है। क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़तल मुआहिदन, किसी इस्लामिक कंट्री में जो आदमी रहता है गैर मुस्लिम उसको मुआहिद कहते हैं। इस्लामिक कंट्री है, बादशाह इस्लामी है, उसके अंदर भी गैर मुस्लिम अगर तो उसको मुआहिद कहते हैं। वो शख्स के बारे में फरमाया, मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह, अगर कोई किसी को कत्ल करता है जो गैर मुस्लिम है, हमारी कंट्री में है मुस्लिम, तो फरमाया वो जन्नत की बो तक नहीं सूंघेगा, फरमाया हुजूर फरमाया। और दूसरी बात फरमाते हैं, व इन रिहा तुजदु मिन मसीरति 40 आमन, 40 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आएगी, उतनी दूर भी उसको नहीं लाया गया। और एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई गैर मुस्लिम को हमारी इस्लामिक कंट्री में मारता है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के रोज उसका मुकद्दमा खुदा के सामने मैं पेश करूंगा। इससे बढ़ के भी कोई बात है? ये इस्लाम की साफ बात है। और रही ये बात, मैं भी वो इंटरव्यू देखा हूं, वो जिसके अंदर एक मुसलमान टोपी रख के बताता है कि मुसलमान, वो एक, मैं नहीं समझता कि वो कोई मुसलमान भी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फितना फैलाने की बात है। और फिर मैं आपको अर्ज करता हूं, इस तरीके की जितनी लोग बात कर रहे हैं ये देश के दुश्मन हैं, देश को मुत्तहद होना नहीं देते। ये जो सरहद पार से आकर के जो जंगजू जो दहशतगर्द हमला किए, उनका मकसद भी यह है कि हिंदुस्तान को फोड़ दें। और ये अंदरूनी तौर पर जो लोग एक किस्म की बातें फैला रहे हैं, जाने अनजाने वो भी उन्हीं की मदद कर रहे हैं इसके जरिए हिंदू मुस्लिम को फोड़ने की। तो नाजरीन, ये थे मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी। आपने बड़े साफ अंदाज में, बड़े वादे अंदाज में मुकम्मल बात रखी, तो आपका बेहद शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद रहमान पाशा।